न्यूमेरिक कांस्टेंट. Where is the duster? Keep your mics mute. Write a few values. Num1, age, डबल कोट्स में हेलो, 47.5 and $, x 75 minus 45. You have to categorize these items, these values in these 4 categories. ठीक है, आपको ये सारी वैल्यूज को इन 4 कैटेगरीज में फिट करना है, कैटेगराइज करना है. डबल कोट्स में फ्रेंड्स, एड्रेस $, आइटम $, B, and then डबल कोट्स में वर्ल्ड, write all these values and now you are going to categorize them in this table. Okay, what is a variable? What is a variable? Alphabet. Variable is not an alphabet. Huh? It variable is a value. Variable is a refers to the memory storage location which will store some value, and that value can change during the program execution. Suppose I had written x equals to 5. So x is a variable because 5 value is going to store in computer. कंप्यूटर की एक मेमोरी लोकेशन में 5 वैल्यू स्टोर हो गई. इस मेमोरी लोकेशन का नेम क्या है? x. Whenever I want to refer to this value, I will refer to the x. मैं x को कॉल करूंगी तो it will give me the value of x, that is 5. ठीक है, तो that is a variable. Variable is refers to the memory location where the values are stored. Okay, and these values can change during the program execution. There are 2 types of variables, numeric variables and string variable. What is the difference between both? What is the difference between numeric variable and string variable? Numeric variable will store only numbers. Numbers can be positive or negative, with points or without points. That means real or integer, any number. String variables will store alphabets. Anything which is given in double quotes, that necessarily not be alphabets. जरूरी नहीं है कि वो alphabets A to Z ही हो. They can be numbers, they can be any symbol, any string. String means a sequence of characters given in double quotes. Anything which is given in double quotes, whether it is a number given in double quotes, whether it is a variable, whether it is a alphabet, any word or any symbol on keyboard, whatever it is given in double quotes, that is a string. And when we want to store a string in a variable, for that we need a string variable. Now how we differentiate कि ये string variable है कि ये numeric variable है?
दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग स्टोर करेगा? नो नो, एनीवन ऑनलाइन? How we will identify whether it is a string variable or a numeric variable, whether it will store the strings or whether it will store the numbers? Correct, Suhana, very good. By कैसे पता चलेगा? कौन सा साइन? डॉलर साइन, ठीक है. A string variable always ends with the dollar sign. Whenever you want to store, like I want to store n dollar sign equals to double quotes में नव्या, तो मैंने नेम लिखा है which I had given in double quotes, ठीक है. Anything which is given in double quotes, that is a string. I want to store it in a variable. तो वेरिएबल जो मर्जी ले ले, चाहे अल्फाबेट चाहे पूरा वर्ड नेम ले ले, बट लास्ट विल बी डॉलर साइन. If you write it like n equals to Navya, that this statement is wrong. ये wrong statement है, because this is a numeric variable, this is string. They do not match. ठीक है. तो whenever you want to store a string, you need a string variable, and string variable always ends with dollar sign. Clear? Okay, now you can categorize these things. First, we are having num1. What is num1? किस कैटेगरी में आएगा? कांस्टेंट. कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जस्ट अ मिनट. स्ट्रिंग वेरिएबल की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है. इट ऑलवेज एंड्स विद डॉलर साइन, ठीक है. तो दैट मीन्स आपको क्लियर होगा इस लिस्ट में कोई वर्ड जो डॉलर साइन से एंड हो रहा है, दैट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल. ओके प्रेरणा, दैट इज करेक्ट. यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर, ठीक है. सेकेंड, मैंने आपको बताया कि वट एवर इज गिवन इन डबल कोट्स, दैट इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है. जो भी वैल्यू डबल कोट्स में दी है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है. नंबर्स, x equals to 47, numeric constant. This is numeric variable. It is storing the value 47. 47 is numeric constants. Numeric constant. So now variable can be single letter, can be full word. Now num1, ना तो ये numeric constant है because it's not a number. इसके डॉलर साइन नहीं लगा, that means it's not a string variable. डबल कोट्स में नहीं है, तो that means string constant भी नहीं है. तो क्या बचा? numeric variable, ठीक है. oh sorry, num1 numeric variable, correct. Now age, एक मिनट. स्ट्रिंग वेरिएबल ऑलवेज एंड्स विद डॉलर साइन है. एक मिनट, डॉलर साइन है? नहीं है. ओके, डबल कोट्स में है? नहीं है. कांस्टेंट क्या होता है? नंबर्स. ये नंबर है? फिर again numeric variable, I can easily write it like this: age equals to 12. 12 is a constant. Numbers which do not change during the program execution. Constants are of two types: numeric constant, string constant. String constant always given in double quotes. Numeric constant any number. तो ना ये numeric constant है, नंबर नहीं है, ना ये डबल कोट्स में है, स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ना इसमें डॉलर साइन लगा है, तो स्ट्रिंग वेरिएबल भी नहीं है. तो string numeric variable, it can store the values. Next is hello. Constant. Constant. String constant. Anything which is given in double quotes is a string constant. Anji, is it clear online class? Any doubt? Any doubt? Okay. 47.5. Correct. Now you got the point. Numeric constant. First name बोला. n dollar sign. String variable. Correct. Okay. X. Constant कैसे हुआ? Numeric variable. 75.
-40 numeric constant. Okay. String constant. डबल कोट्स में है, कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट. Anything which ends with $sign, string variable. Next is also string variable. आराम से one by one. Okay, word. Constant. Clear? Activity clear है? Difference clear है? Any doubt online class? Any student, any doubt? Raise your hand. Is it clear the difference? What is string variable and what is numeric variable? String variable is that which always ends with $sign. Numeric variable, any name, any single alphabet which can store values. ठीक है? Numeric variable or string variable always starts with alphabet. ठीक है? And they will not have any space. Second, constants, the values which do not change during the program execution. Two types, string constants always given in double quotes. Numeric constants which are given, which are any number with or without decimal point, positive or negative. Clear? Clear? Okay, now write a program. Write a program to input. Everyone write in your rough copies. Write a program to input item name, price, item name, price, and its quantity. Write a program to input item name, प्राइस कितने की है और कितनी क्वांटिटी बाय करी है, एंड फाइंड आउट द अमाउंट टू बी पेड. फाइंड द अमाउंट टू बी पेड. क्या अमाउंट पे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू हैव द आइटम नेम कि क्या आइटम बाय कर रहे हैं. देन आपने यूजर से पूछना है कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं और किस प्राइस में बाय कर रहे हैं. सपोज आपने बोलना है मेरे को चिप्स बाय करने हैं, तो आइटम नेम क्या हो गया? चिप्स. कितनी प्राइस है? मे बी 10, मे बी 20, मे बी 30. क्वांटिटी कितने पैकेट्स बाय किए? सपोज 2, 5, जितने. अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? मल्टीप्लाई. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? अमाउंट. ओके, नाउ राइट द प्रोग्राम. व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट. तो आप बता दो क्या आएगा बेटा. पहले ये बताओ, आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो माइंड में पहले सोचो आपको क्या चाहिए. प्रोसेस, एल्गोरिथम सोचो, सिंपल स्टेप्स. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिखा है? टेक द वैल्यू ऑफ आइटम नेम, प्राइस और क्वांटिटी यूजर से लेनी है. whatever you want to take the from the user, for that purpose you will use input statement. कोई भी प्रोग्राम बना लो, एक रूल हमेशा याद रखना, you always follow IPO साइकिल. पहले वैल्यूज चाहिए जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी. इनपुट, जब तक इनपुट नहीं होगा प्रोसेसिंग नहीं होगी. प्रोसेसिंग वेयर यू विल डू द कैलकुलेशंस. आउटपुट आफ्टर दैट. लास्ट इज आउटपुट. आउटपुट किससे होती है? प्रिंट स्टेटमेंट से. इनपुट किससे होती है? वेदर विद द इनपुट स्टेटमेंट और लेट स्टेटमेंट. अगर यूजर से नहीं लेना, वैल्यू अज्यूम करनी है तो लेट स्टेटमेंट, नहीं तो इनपुट स्टेटमेंट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज let or input to get the values on which you will do the calculation. हर प्रोग्राम में ये स्टेप फॉलो होगा. कभी भी कोई भी प्रोग्राम लिख लो,
Every program will follow the IPO cycle. Then you will do the calculation or the processing on those values. Then finally you will display the result, output. ठीक है, तो अभी आपको क्या चाहिए? Item name, price और quantity which user will give at the runtime. So when we are taking the values from user during the runtime, we will use the input statement. What is the syntax of input statement? कैसे use करते हैं? क्या लिखेंगे? Input, डबल कोट्स में क्या देते हैं? मैसेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन व्हाइल टेकिंग वैल्यू. यूजर से वैल्यू लेनी है तो मैसेज स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए? डबल कोट्स में जो आपका मन करे आप लिख सकते हो. पहली आइटम मुझे क्या चाहिए? आइटम नेम. मैंने लिखा एंटर आइटम नेम. ओके, देन डबल कोट्स क्लोज, सेमीकोलन, variable name that will store the name of item. ठीक है, that will store the name of item. Variable name कैसा होगा? अब क्या मैं नंबर एंटर करवा रही हूँ यूजर से? क्या एंटर करवा रही हूँ? नेम किस में होंगे? अल्फाबेट्स में. स्ट्रिंग्स होंगे. अगर स्ट्रिंग स्टोर करवाने हैं तो वेरिएबल कैसा होगा? स्ट्रिंग वेरिएबल होगा. एंड स्ट्रिंग वेरिएबल ऑलवेज एंड्स विद $, $n, $x, नेम $, कोई भी नेम ले लो. ठीक है, ये हो गया, नेम स्टोर हो गया. नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? प्राइस. इनपुट, एंटर योर प्राइस. क्या लूं? Yes. अब why now $? प्राइस नंबर्स में होता है कि अल्फाबेट्स में होता है? नंबर्स में. अगर नंबर्स में होता है तो वेरिएबल कैसा होगा? न्यूमेरिक वेरिएबल. न्यूमेरिक वेरिएबल एनी अल्फाबेट और एनी नेम, एनी वर्ड. ठीक है, मैंने ले लिया P. ओके, देन आई वांट क्वांटिटी. क्यू नंबर्स में होता है, मैंने क्यू ले लिया. ठीक है, नाउ डू द कैलकुलेशन. नाउ फाइंड द अमाउंट. विच स्टेटमेंट शुड आई राइट? एनीवन ऑनलाइन? रेज योर हैंड. नाउ व्हाट शुड आई राइट? इनपुट हो गया. नाउ आई वांट टू डू द प्रोसेसिंग. आई वांट टू डू द कैलकुलेशन. व्हाट स्टेटमेंट आई शुड राइट नाउ? प्रोसेसिंग के लिए प्रिंट करोगे. प्रोसेसिंग, प्रिंट का मतलब to display output on output screen. कंडीशन क्या चेक कर रहे हो? क्या चेक कर रहे हो? क्यों? Whether we are making some decision. मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शंस है मेरे पास कि मुझे डिसीजन लेना है? आई एम नॉट टेकिंग एनी डिसीजन. आपको सिंपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपसे बिगनिंग में पूछा है. मल्टीप्लाई करके. तो प्राइस इंटू क्वांटिटी को आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है. तो उसके लिए क्या इफ और सिलेक्ट केस क्यों चाहिए? आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है. लेट a इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड बाय q. दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट कैलकुलेट हुआ जो मैंने किसमें स्टोर कर दिया? a में. why select case? why print? प्रोसेसिंग है. डन. नाउ डिस्प्ले द आउटपुट. प्रोसेसिंग हो गई, वैल्यू कैलकुलेट हो गई, कंप्यूटर की मेमोरी में वैल्यू आ गए, मेरे पास रिजल्ट आ गया. नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दैट रिजल्ट ऑन आउटपुट स्क्रीन फॉर द यूजर. तो जब आउटपुट स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाना है तो क्या यूज होगा? प्रिंट स्टेटमेंट. नाउ आई विल राइट प्रिंट. प्रिंट के बाद क्या लिखना है? शुड आई डिस्प्ले सम मैसेज? ठीक है, अगर मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो दैट विल बी गिवन इन डबल कोट्स. अमाउंट इक्वल्स टू डबल कोट्स क्लोज, सेमीकोलन A. Why I had written this in double quotes and why it without double quotes and why there is a semicolon? Anyone? मैंने प्रिंट के साथ
तीन चीजें करी है मैंने। एक डबल कोट्स में मैसेज दिया अमाउंट इक्वल्स टू, ठीक है, एक मैंने दिया सेमीकोलन, एक मैंने दे दिया ए, और ए को मैंने डबल कोट्स में नहीं डाला। व्हाई? बिकॉज ए इज अ वेरिएबल, उसकी मुझे वैल्यू चाहिए। डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। दैट मीन्स अमाउंट इक्वल्स टू एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अगर ए भी डबल कोट्स के अंदर लिख देते तो क्या होता? अमाउंट इक्वल्स टू ए आ जाता, उसकी वैल्यू नहीं आती, राइट? दैट मीन्स हाँ, नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, oh sorry, string constant, this is my numeric variable. We are combining two things in a same line to be displayed. एक लाइन में मैं दोनों चीजें डिस्प्ले करवा रही हूँ, एक मेरा स्ट्रिंग कांस्टेंट है और एक मेरा न्यूमेरिक वेरिएबल है। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए सेंटर में क्या आएगा? सेमीकोलन। व्हाई सेमीकोलन? सेमीकोलन विल डिस्प्ले टू थिंग्स ऑन द सेम लाइन। एक लाइन में दो चीजें डिस्प्ले करवानी है। आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। अगर मुझे यहां नहीं लिखना, आई कैन राइट इट लाइक दिस, प्रिंट ए, तो क्या होता? अमाउंट इक्वल्स टू एक लाइन में आया, वैल्यू उसके नेक्स्ट लाइन में आई। जब मुझे दो चीजें, एक दो प्रिंट स्टेटमेंट्स एक लाइन में कंबाइन करनी है, देन आई विल यूज सेमीकोलन एंड यूज वेरिएबल नेम। So it will display both the things on same line without any space. और अगर नंबर्स हैं तो वन स्पेस, अगर स्ट्रिंग है तो कोई स्पेस नहीं होती, ठीक है? ये तो हो गया सेमीकोलन। कैन आई यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन? एनी अदर सिंबल? ओके, पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं, इसकी आउटपुट कैसे आएगी। व्हाट शुड बी द लास्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम? एंड। Okay, what is the use of CLS statement? CLS आपकी बुक में आई थिंक बिगनिंग में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें CLS और रैम स्टेटमेंट भी होगी, चेक करो। अच्छा चलो चेक करो, इट इज गिवन, दिया हुआ है, एक रैम दी हुई है, REM रैम भी दी हुई है टेबल में, टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। व्हाई? बिकॉज जो बेसिक में जब भी प्रोग्राम हम रन करते हैं, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले आता है, आउटपुट आती है। सेकेंड टाइम जब प्रोग्राम रन करते हैं तो पहली आउटपुट वहीं रहती है, सेकेंड प्रोग्राम की आउटपुट उसके नीचे डिस्प्ले होती है। मे बी जो आजकल के लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें ऐसा ना हो, बिकॉज कुछ वर्जन में मैंने देखा है आउटपुट स्क्रीन ऑटोमेटिकली क्लियर हो रही है, बट इन द प्रीवियस वर्जन जो हम लास्ट ईयर यूज कर रहे थे, वहां पे क्या होता था, प्रोग्राम जब रन किया स्क्रीन पे आउटपुट आ गई इस प्रोग्राम की, जब मैंने सेकंड टाइम रन किया तो इसकी आउटपुट भी ऊपर नजर आ रही है, उसके नीचे सेकंड आउटपुट आ रही है। थर्ड टाइम रन किया, फर्स्ट टू प्रोग्राम्स की आउटपुट आ रही है, फिर थर्ड प्रोग्राम आ रहा है, मतलब आउटपुट स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही है अपने आप। टू क्लियर दैट आउटपुट स्क्रीन वी यूज द CLS स्टेटमेंट, ठीक है। वन यूज इज दिस। सेकेंड यूज क्या होता है कि जब हमारे पास एक प्रोग्राम बहुत लेंथी है, अभी तो आप सिर्फ 4 या 5 स्टेटमेंट्स का एक प्रोग्राम कर रहे हो, व्हेन योर प्रोग्राम इज टू लेंथी, कुछ आउटपुट आई, कुछ प्रोसेसिंग हो गई, कुछ इनपुट ले लिया, आफ्टर दैट आई वांट टू क्लियर द स्क्रीन एंड देन गेट टू द सेकंड पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। तो बीच में कहीं पर भी जहां जरूरत है, आपको लग रहा है कि मुझे पिछली आउटपुट क्लियर करनी है, यू कैन यूज द CLS स्टेटमेंट। CLS statement is used to clear the output screen, and usually जब when we want to clear the output screen before running my program, I write that statement in the beginning because statements run in sequence. तो first statement जब program run करेंगे, first statement कंप्यूटर को क्या मिल रही है? CLS. So that means what it will do? It will clear the output screen. Then it is getting the second statement, input, enter the item name. So it will display on the output screen, enter item name and question mark. No, ठीक है, for and dollar sign. Now I will enter the item name. Suppose मैंने enter कर दिया chips. Then second message क्या है? Input price. Question mark. Enter the price. Suppose 20. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इनपुट क्वांटिटी, क्वेश्चन मार्क। व्हाई क्वेश्चन मार्क?
Input statement, whenever we use it, displays a question mark on output screen. ठीक है, input statement always displays a question mark on output screen. हाँ, कहाँ, यहाँ थोड़ा आना है. इनपुट में मैंने कोडिंग करी है, मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है. आउटपुट स्क्रीन पे इनपुट स्टेटमेंट की वजह से आउटपुट स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले होगा, आस्किंग वैल्यू फ्रॉम यूजर, तो सिंबलाइज की ये वैल्यू पूछ रहा है. नाउ आई एंटर सपोज क्वांटिटी. ठीक है, नाउ कंप्यूटर की मेमोरी में कैलकुलेशन हो गई, पी को वैल्यू मिल गई 20, क्वांटिटी क्यू को मिल गई वैल्यू 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया 40, किसको असाइन हुआ, ए को. Now message is print amount equals to a की वैल्यू, तो amount equals to 40. ठीक है, how this program will do, पहले input, फिर processing, फिर output. Prerna, which HTML link you are talking about? Unmute yourself. Okay, is it clear to everyone now? Program clear है सबको? Okay, I was asking कि which symbol you can use instead of this semicolon. Semicolon के अलावा हम कुछ और use कर सकते हैं print में? Yes, we can do. We can do. We can use comma also. Now, what is the difference between comma and semicolon? No. What is the difference between comma and semicolon? Semicolon do not give any space, print the two things side by side on the same line. But comma will give space. Comma will give space up to 5 spaces. Almost 5 spaces are there. अगर हमने यहाँ semicolon की जगह comma लगाया है, तो ये स्टेटमेंट कैसे प्रिंट होगी, विद स्पेस, ऐसे. ठीक है, क्लियर? ओके, हाँ जी, क्लियर है यहाँ पे? एनीवन ऑनलाइन क्लास, रेज योर हैंड इफ इट इज नॉट क्लियर और यू वांट टू आस्क एनीथिंग. एनीवन? If any point is not clear, you can ask me. Raise your hand so that I can unmute yourself. You. Okay. Write a program. To display following pattern. Write a program to display following pattern. सिंपल प्रोग्राम है, आपको भी सिर्फ डिस्प्ले करना है, कोई इनपुट नहीं है, कोई प्रोसेसिंग नहीं है, ओनली आउटपुट इज I said write a program to display this pattern on the output screen. मैं प्रोग्राम को रन करूं तो आउटपुट स्क्रीन पे मुझे इस तरह से 5 स्टार नजर आए. फर्स्ट लाइन में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फोर्थ लाइन में 4 और 5th लाइन में 5. What will you write? Anyone? Display output on output screen. क्या स्टेटमेंट यूज होगी? पहली बात ये बताओ, इनपुट क्यों करना है? मैंने बोला now you are just to display. We are not taking any value from user. We are not doing any processing. We are just displaying the output. To display the output, print statement. Okay? Print क्या करवाना है? Asterisk. Asterisk. Symbol print करवाना है? कुछ भी print करवाना है? किसमें दिया होना चाहिए? डबल कोट्स. ठीक है, तो क्या करेंगे? प्रोग्राम क्या लिखेंगे? प्रिंट
डबल कोट्स में एस्ट्रिक। जब रन करेंगे तो स्क्रीन पे एस्ट्रिक डिस्प्ले होगा, होगा। ओके, सेकेंड लाइन में प्रिंट डबल कोट्स एस्ट्रिक विद वन स्पेस सेकेंड एस्ट्रिक। सेकेंड लाइन में 2 हो जाएंगे। अगर 3 करने हैं तो क्या करेंगे, सेम सिंपल। मैंने आपको प्रोग्राम दिया, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं दी, सिंपल एक प्रोग्राम दिया, वो भी आपसे नहीं हुआ। मैंने क्या बोला, सिंपल एक आउटपुट डिस्प्ले कराओ। कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले करानी है प्रिंट स्टेटमेंट यूज होगी। जो आउटपुट डिस्प्ले करवानी है उसको डबल कोट्स में लिखते जाओ, तो वो डबल कोट्स में हो जाएगा। Okay, if I want to leave a blank line, मुझे हर प्रिंट के बाद एक ब्लैंक लाइन चाहिए, तो क्या करेंगे, नो एंड मीन्स टर्मिनेट्स द प्रोग्राम। ये तो आपके हो गए 5 लाइन्स की आउटपुट आ गई, सेम जो मैंने यहाँ दिया है। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट आपकी एंड आ जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी CLS आ जाएगी। ठीक है, एक रैम स्टेटमेंट रह गई आपकी टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि एक स्टार प्रिंट हो, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन आए, फिर एक एक लाइन का गैप आए। हाउ यू लीव द ब्लैंक लाइन? नो, नथिंग। क्या किया मैंने, खाली प्रिंट, कुछ नहीं करना, कोई डबल कोट्स में कुछ नहीं देना। इफ यू हैड रिटन ओनली वन प्रिंट स्टेटमेंट विदाउट एनीथिंग, इट विल डिस्प्ले अ ब्लैंक आउटपुट लाइन। इन यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा स्टार प्रिंट होगा, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरी लाइन प्रिंट होगी। इट इज नॉट ओनली इन पैटर्न्स, इन एनीवेयर इन द आउटपुट। आपको प्रोग्राम की आउटपुट में कहीं पर भी ब्लैंक लाइंस चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी लिखने के बाद 2 लाइंस ब्लैंक चाहिए, तो राइट 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स इन सेपरेट लाइंस, देन राइट द आउटपुट लाइन, जो प्रिंट दिस क्वांटिटी इज दिस, अमाउंट इज दिस, तो इट विल लीव द ब्लैंक लाइन। खाली प्रिंट स्टेटमेंट, ओनली प्रिंट स्टेटमेंट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनीथिंग, इट विल लीव द ब्लैंक लाइन इन आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, क्लियर? करके देखना, इसको रन करके देखना, आपको ब्लैंक लाइंस नजर आएंगी वहां पे। क्लियर? एक बार बिना लाइंस के करना, एक बार ब्लैंक लाइंस के साथ करके देखना। यू विल फाइंड द डिफरेंस कि विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट यू विल फाइंड अ ब्लैंक लाइन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सेमीकोलन विदाउट एनी स्पेस, कॉमा विद 5 स्पेसेस इन द सेम लाइन। क्लियर? हाँ जी, एनी डाउट 7C क्लास, ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट? टॉपिक क्लियर है आज का?